My dear students, welcome back to your English Academy YouTube channel. Then today I am bringing a question paper. It's the question paper of third language Hindi, class 8th, Karnataka School Examination and Assessment Board, Maulankana 2024, the model question paper. Now we will go through that the key answers of the question on the question paper. Okay, before there is a one thought. Then the thought is today's reader, tomorrow's leader. ಇವತ್ತು ಯಾವ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಯಾವ ನಾಳೆಗೆ ಲೀಡರ್ ಆಗಬೇಕಂತನಲ್ಲ, ಅವೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಲೀಡರ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಲೆಟ್ಸ್ I will come to that the key answers of this question paper. Okay, here is the information to be filled by the student, name of the student, student SATS number, signature of the students, the remaining it's left to room invigilator. Okay, then they will fulfill this form and total marks in the words. Okay, we will have that the question paper. We will solve that the question paper of this. Okay, then in the first main, what is that in the first main, my dear students? निम्नलिखित बहुकल्पीय प्रश्नों के चार उत्तर दिए गए हैं, उनमें सही उत्तर चुनकर संकेताक्षर के साथ लिखिए. Then the first question is, उसके हाथ में एक सोने का कड़ा था. सोना शब्द का समानार्थक पद. सोना शब्दದ समानार्थಕ ಪದ ಯಾವುದು? ಸಿನೋನಿಮ್ ಯಾವುದು? लोहा है, सुवर्ण है, तांबा है, चांदी है. द राइट आंसर इज सोना शब्द का समानार्थक ऑप्शन बी सुवर्ण है. लाइक दिस यू कैन राइट इन द बॉक्स ऑप्शन my dear students and write here the answer. Okay, next we will have that the second question. Raja, Rani, Badshah, dash. Lodri, it is a question on that genders, male, female. Badshah ಮತ್ತು ಅವ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ರಾಜ ರಾಣಿ ಆದರೆ ಬಾದಶಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬೇಗಮು, ಪತ್ನಿನು, ಬಹನ್ನು, ಮಹಿಳಾ. And the right answer is option A, ಬೇಗಂ. राजा रानी बादशाह बेगम. ओके, लेट्स थर्ड क्वेश्चन. सैनिक छुट्टियां बिताने गए थे. रेखांकित शब्द का अन्य वचन रूप. ये छुट्टियां दो अन्य वचन रूप ಏನಾಗುತ್ತೆ? छुट्टियों हैं, छुट्टी हैं, छुट्टी हैं, छुट्टियां हैं. द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, छुट्टी हैं. छुट्टियां शब्द का रेखांकित शब्द अन्य वचन रूप छुट्टी है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. चंपा से रहा ना गया वाक्य में संज्ञा शब्द ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ऑप्शन ए से है, ऑप्शन बी रहा है, ऑप्शन सी गया है, ऑप्शन डी चंपा है. द राइट आंसर इज ऑप्शन डी चंपा है. चंपा से रहा ना गया वाक्य में संज्ञा शब्द इज चंपा है. ओके, नेक्स्ट द क्वेश्चन नंबर 5. अच्छा गुणवाचक विशेषण एक. अच्छा ಅನ್ನೋದು ಗುಣವಾಚಕ ವಿಶೇಷಣ ಆದರೆ ಏಕ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರಶ್ನವಾಚಕ ವಿಶೇಷಣ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ನಿಜವಾಚಕ ವಿಶೇಷಣ, ಸಂಖ್ಯಾವಾಚಕ ವಿಶೇಷಣ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಶ್ಚಯವಾಚಕ ವಿಶೇಷಣ. ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ವಿಚ್ ಒನ್ my dear students here? We will have that the right answer is, ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಓಕೆ ವೇಟ್ ಫಾರ್ 1 minute. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅಚ್ಚ ಗುಣವಾಚಕ ವಿಶೇಷಣ ಏಕ್ ಅನ್ನೋದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ನಂಬರ್ಸನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಸಂಖ್ಯಾವಾಚಕ ವಿಶೇಷಣ is the right answer, dear students here. Okay, we will see that the sixth question. हम अखबार पढ़ते पढ़ते चाय पीते हैं वाक्य में विरुक्ति शब्द
ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ದ್ವಿರುಕ್ತಿ ಯಾವುದು? ಹಮ್ ಅಕ್ಬರ್ ಪढ़ते पढ़ते पढ़ते चाय चाय पीते. द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, पढ़ते पढ़ते is the द्विरुक्ति here. Next question number 7th. सीखना सिखाना चलना, the चलाना चलवाना चल चलनाना. The right answer is चलाना. सिखाना सीखना सिखाना चलना चलाना is the right answer here. नेक्स्ट निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य, सरियाद वाक्य ಯಾವುದಲ್ಲಿ? शीतलता का अर्थ ठंडा है, मोहसिन का माँ बीमार है, दिल्ली भारत का राजधानी है, अध्यापिका पाठ पढ़ती है. द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन ए, शीतलता का अर्थ ठंडा है. ಇದು ಸರಿಯಾದ ವಾಕ್ಯ ಇಲ್ಲಿರೋದು. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 वी विल सी नाउ. इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द, सही वर्तना वाला शब्द ಯಾವುದಿಲ್ಲಿ? मस्ती है मस्ती है मस्ती है मस्ती है. राइट आंसर इज हियर ऑप्शन सी, मस्ती है. इनमें सही वर्तना वाला शब्द ऑप्शन सी, मस्ती है. नेक्स्ट वी विल सी दैट द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन नंबर 10. चित्र से संबंधित शब्द, गेंदा फूल है, भवन है, कबूतर है, पेड़ है. ಇದೇನದ? ಪೇಡದ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಪೇಡ್ ಹೈ. ಇವನ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದು? ಗಿಡ ಅದ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. नेक्स्ट 11th क्वेश्चन. फुलाना समाना मुहावरे शब्द से संबंधित वाक्य, अत्यंत प्रसन्न होना, दुख होना, क्रोधित होना, भाग जाना. फुलना समाना मुहावरे का संबंधित वाक्य ಯಾವುದಲ್ಲಿ? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, अत्यंत प्रसन्न होना. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. तिम्मा का अनपढ़ महिला थी, रेखांकित शब्द का विरुद्धार्थक शब्द. अनपढ़ दो एंटोनिम ಕೇಳಿದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. अपढ़ है, पढ़ है, नफढ़ है, नाफढ़ है. अनपढ़ द एंटोनिम इज पढ़ है, अनपढ़ फढ़. ಏನು ಅನ್ಪढ़ ದೇವಲ್ಲ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಟ್ರೇಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಫರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. व्हाट इज दैट? निम्नलिखित शब्दों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा, ಕೊಟ್ಟಂತಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿವಾಚಕ ಸಂಜ್ಞೆ ಯಾವುದು? छात्रा है, बचपन है, प्रिया है, पानी है. द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, निम्नलिखित शब्दों में व्यक्तिवाचक संज्ञा इज प्रिया है. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. संज्ञा शब्दों के बदले में प्रयुक्त होना वाला क्रिया है, विशेषण है, लिंग है, सर्वनाम है. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್? संज्ञा शब्द के बदल में प्रयुक्त होने वाला ऑप्शन डी, सर्वनाम है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. लेट्स विल सी नाउ. निम्नलिखित पद्यांश में प्रयुक्त तुकांत शब्द, माऊ माऊ बिल्ली आई, उठा कहीं से रोटी लाई. ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ತುಕಾಂತ ಶಬ್ದ? आई लाई, बिल्ली आई, माऊ माऊ, रोटी लाई. द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, आई आई इज द प्रयुक्त तुकांत शब्द है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. आंख देखना, ಕಾನ, ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಕಾನಿಂದ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸುನಾನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸುಂಗನ ಬೋಲ್ನ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕಾನದಿಂದ ಸುನನ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಸುನನ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ 4x1 राइटिंग क्वेश्चंस माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, लेट्स वी विल सी नाउ. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए.
अभिनव गीत पद्य से बच्चे क्या सीखते हैं? इस कविता के द्वारा बच्चे जिनके कला सीख सकते हैं, कष्ट के समय भी हंसते रहने और सबको सुख देते रहती है कि कल का परिचय दिलाना इस कविता का उद्देश्य है। माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द आंसर ऑफ अभिनव गीत पद्य से बच्चे क्या सीखते हैं। अभिनव गीत पद्यದಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಕಲಿತಾರೆ? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, सेब कहाँ से गिरा? सेब पेड़ से गिरा, ಗಿಡದಿಂದ ಬಿತ್ತು ಸೇಬ್। ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಬರ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ರಿ, then you write well, study well and rank well my dear students. Okay, let's we have that next question. मेजर को कौन से का कार्य कठिन था? मेजर को इच्छोगिल नहन का मोर्चा तोड़ना कठिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, उदंत मार्तांड किस भाषा के प्रथम पत्रिका है? उदंत मार्तांड हिंदी भाषा की प्रथम पत्रिका है। ओके, नेक्स्ट थर्ड में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। 2-3 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು। 4 × 1 = 4। गांधी जी के स्वभाव के बारे में लिखिए। गांधी जी ಅವರ ನೇಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯತಂದಾರ। बालक मोहनदास करमचंद गांधी शर्मीले स्वभाव के थे। ठीक समय पर स्कूल जाते और घंटी बजते ही घर चलते। उन्हें काम से कमा था, कभी उन्होंने किसी को नहीं सताया और कभी झूठ नहीं बोले। This is about the Gandhi's nature. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, शिक्षा कविता से क्या सबक मिलती है? शिक्षा कविता से हम जीवन में यश की प्रणति के लिए अनेक प्रकार के मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। बिना परिश्रम के हम कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकते। ಪರಿಶ್ರಮ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಇರಲಾರ್ದೆ ನಮಗೆ ಯಾವತ್ತೂ सक्सेस ಅನ್ನೋ ಸಿಗಲ್ಲ। ಭಾರತೀಯ त्योहार कौन कौन से है? ಭಾರತದ ಹಬ್ಬಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು? मकर संक्रांति, बैसाखी, दशहरा, दीपावली, ओणम, विशु, क्रिसमस, रमजान, युगादि से सब भारतीय त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, पानी एक उपयोगी साधन है, कैसे? व्हाट इज द ಯಾವ ರೀತಿ पानी उपयोगवाद ಒಂದು ವಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? जीवन के लिए पानी अनिवार्य है। पानी के बिना कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता है। साफ सफाई, नहाना धोना, मिसाई, बुआई आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, संतुलित आहार का मतलब क्या है? शरीर को स्वस्थ और सुदृढ़ रखने के लिए सही मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स वक्त करना के संतुलित आहार कहलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, रक्षाबंधन त्यौहार का आचरण के बारे में लिखिए। रक्षाबंधन त्यौहार देश के कौन कोने में मनाया जाता है? सारी बहनें इस त्यौहार की साल भर प्रतीक्षा करती रहती हैं। वो अपने हाथ में बाइपों के राखी बांधकर मिठाई खिलती है। इसी आनंद और हंसी खुशी के साथ यह त्यौहार संपन्न होता है। ಈ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ರಕ್ಷಾಬಂಧನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेन नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4 to 6 वाक्य में लिखिए। निम्नलिखित वाक्यों का सही घटनाक्रम से लिखिए। तिम्मक का जन्म ककने वाली गांव में हुआ। तिम्मक्का ने एक बच्चे के गोद लिया। तिम्मक्का ने रास्तों के दोनों ओर पेड़ लगाए। तिम्मक्का का विवाह बिकला चिक्कಯ್ಯ के साथ हुआ था। ಇದನ್ನ ರೀಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಬರಿಬೇಕು। ಯಾವ ರೀತಿ? ಮೊದಲು ಯಾವ್ದು ಬರಿತೀವಿ? ಫಸ್ಟ್ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಜನ್ಮ ಒಕ್ಕೆ ನಹಲಿ ಗಾಂವ್ ಮೇ ಹುವಾ। ಮೊದಲು ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದ? ಎಲ್ಲೋಯ್ತು? ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಇದು ರೈಟ್ ಆಗ್ತದೆ। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇ, ತಿಮ್ಮಕ್ಕ का विवाह बिक्कल चिक्कಯ್ಯ के साथ हुआ। नेक्स्ट
तिम्मक्का ने एक बच्चे को गोद लिया, तिम्मक्का ने रास्ते के दोनों ओर पेड़ लगाया. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ then you will get that 3 marks my dear students. पद्य भाग पूर्ण कीजिए. रंग बिरंगी मोहक छवि से, अपने अंतर के सुगंध से, तन से मन से निज जीवन से सब जग को सुरभित करते हैं. ಎಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ದೋಹೆಗೆ ಭಾವಾರ್ಥ अपने ಶಬ್ದों में लिखिए. ಈ ದೋಹೆಯ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ऐसी बानी बुलाए मन का आप कोई, औरन के शीतल करे आप हूँ शीतल होई. कबीर कहते हैं कि आप ऐसी वचन बोलिए जिससे आपका अहंकार मिट जाए, आपकी बोल से दूसरों के शीतलता मिले और अपना मन भी शीतल हो जाता है. आंसर ऑफ 29. नेक्स्ट, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए. श्री रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 में तमिलनाडु की तिरुचनापल्ली जिले में हुआ था. उनके पिता चंद्रशेखर अय्यर एक कॉलेज में भौतिक व गणित अध्यापक थे. उनकी माता संस्कृत की विदुषी थी. अपनी प्रकार बुद्धि और प्रतिभा के कारण उन्होंने 12 वर्ष के आयु से पहले मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली. ओके, अदर मेल क्वेश्चन ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. रमन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 में तमिलनाडु के तिरुचनापल्ली जिले में हुआ था. रमन का पिता का नाम क्या है? रमन का पिता का नाम चंद्रशेखर अय्यर है. रमन के पिता क्या काम करते थे? रमन के पिता चंद्रशेखर एक कॉलेज के भौतिक गणित के अध्यापक थे. रमन में मैट्रिक की परीक्षा कब पास किया? रमन ने मैट्रिक परीक्षा 12 वर्ष के आयु से पहले ही मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली थी. नेक्स्ट, द लास्ट क्वेश्चन 31. कोई कारण देते हुए 3 दिन की छुट्टी के लिए प्रधान अध्यापक के प्रार्थना पत्र लिखिए. लेटर राइटिंग इट इज माय डियर स्टूडेंट्स. दिनांक राइट हियर 23 फरवरी 2024. प्रेषक सुधा, 8वीं कक्षा, सरकारी हाई स्कूल विजयपुर, 586104. सेवा में कक्षा अध्यापक, सरकारी हाई स्कूल विजयपुर, 586104. आदरणीय महोदय, विषय 3 दिन की छुट्टी की प्रार्थना हेतु पर्युक्त विषय के संबंधित में आपसे निवेदन है कि दिनांक 24/2/24 से दिनांक 26/2/2024 तक मुझे अपने भाई के शादी में भाग लेने के लिए बेंगलुरु जाना है. इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकती. अंत आपसे प्रार्थना हो कि इन 3 प्रश्नों के छुट्टी देने की कृपा करें. धन्यवाद सहित अभिभावक के हस्ताक्षर. हियर यू कैन साइन. आपका आज्ञाकारी छात्र सुधा. ये रीति बरीरी. ओके my dear students, you got that clarity related this question paper. If you liked our teaching, then you have to just one motivation from your side, that is your subscription. Dear students, your subscription is my motivation to bring the more classes in front of you to develop your study purpose and the key answers whatever. Then in your friend circle you can share this video, and if you liked our teaching you can like. Then whatever you have the doubts you can comment in the comment section my dear students. Then we will come to that solution. I hope you got the clarity. Any key answers or solutions for the given question paper of 2024, the model question paper, third language Hindi, class 8th. Okay, thanks for watching. In that next video class I will with that the one more important video. For that I need from you one subscribe. Okay, that is left to you. Okay, I will come with that one more video. Thanks for watching. See you.